بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت چہارم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پہلے سبق کا پہلا لیکچر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے پارے موجود ہیں۔ ہم ان پاروں کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان پاروں کو پورے سال میں اس انداز سے پڑھنا ہے کہ سال کے اختتام پر آپ کا ناظرہ قرآن مجید ان پاروں کا مکمل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا ہمارا عنوان ہے ناظرہ قرآن مجید، جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور یہ پہلے باب کا پہلا سبق ہے، یعنی 1.1۔ تو آج کے سبق میں ہم پارہ 9 تا 18 کا تعارف سیکھیں گے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ ہمارے آج کے سبق کے 2 SLOs ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے اس سلائیڈ میں موجود ہیں۔ ہمارا پہلا SLO ہے قرآن مجید کی پارہ 9 تا 18 کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ تو آپ نے صرف ان کی تلاوت ہی نہیں کرنی بلکہ تجوید کے ساتھ ان کی تلاوت کرنی ہے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں۔ تو آپ نے ان پاروں کی، جو کہ 10 پارے بنتے ہیں، ان کی ایک تو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی ہے دیکھ کر، اور آپ نے دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال بھی رکھنا ہے۔ یہ تھے ہمارے 2 SLO۔ اس کے بعد دہرائی کے چند سوالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں جو کہ پچھلی جماعت سے متعلق ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے اس سبق کو پچھلی جماعت کے اسی سبق کے ساتھ، یعنی ناظرہ قرآن مجید کے ساتھ ربط قائم کرنا اور ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا۔ تو آپ کے سامنے کچھ سوالات اس سلائیڈ میں موجود ہیں، چلتے ہیں اور آپ سے یہ سوالات پوچھتے ہیں۔ اساتذہ ان کے علاوہ دیگر سوالات بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، تلک الرسل کون سے پارے کا نام ہے؟ پہلا سوال ہے، تلک الرسل کون سے پارے کا نام ہے؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، یہ پارہ نمبر 3 کا نام ہے، اور ہم نے یہ بات آپ کو پچھلی جماعت میں اچھی طرح بتائی تھی۔ اگلا سوال ہے، سورۃ البقرہ کن پاروں میں موجود ہے؟ یعنی سورۃ البقرہ کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کون سے پارے میں ہے، اور کون سے پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، یہ پارہ 1 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 3 تک چلتی ہے، یعنی کل 3 پاروں میں یہ سورت موجود ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا پارہ۔ اگلا سوال ہے، سورۃ النساء کا معنی بتائیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے سال ہم نے آپ کو جماعت سوم میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر سورت کا ایک معنی ہوتا ہے، اور ہم نے آپ کو اس پارے میں موجود تمام سورتوں کے معنی بھی بتائے تھے۔ تو آپ نے سیکھا ہوگا اور اس وقت یاد کیا ہوگا کہ نساء کا معنی ہے عورتیں، نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اگلا سوال ہے، 8ویں پارے کا نام بتائیں، اور اس سے اگلا سوال ہے، مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد بتائیں۔ تو جیسے کہ پہلے 3 سوالات کا جوابات ہم نے آپ کو بتایا، آپ نے ان 2 سوالات کے جوابات خود تلاش کرنے ہیں، اور پچھلی جماعت کی کتاب آپ نے اٹھانی ہے اور اس کا لیکچر سننا ہے، اور ان 2 سوالات کے جوابات آپ نے اس کے پہلے تعارفی لیکچر میں تلاش کرنے ہیں اور اپنی کاپی پر لکھ کر لانا ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی سی ہو جائے گی سرگرمی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سبق کو اس سبق کے ساتھ متعلق کر کے اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اور اپنے پارے میں موجود 10 پارے، اس سبق میں موجود 10 پاروں کا تعارف جانتے ہیں اور ان کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پارہ نمبر 9۔ اس پارے کا نام ہے قال الملأ، قال الملأ۔ اس پارے میں 18 رکوع اور 159 آیات ہیں۔ تو آپ نے یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، پارے کا نام، اس میں موجود رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس کے بعد پارہ نمبر 10، اس پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا۔ اس پارے میں 17 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ پارے کا نام
वअलमू पारा नंबर 10। पारा नंबर 11, इस पारे का नाम है यातज़िरून, यातज़िरून, और इस पारे में 16 रुकू और 150 आयात हैं। पारा नंबर 12, इसका नाम है वमा मिन दाब्बा, वमा मिन दाब्बा। इस पारे में 16 रुकू और 170 आयात हैं। पारा नंबर 13 का नाम है वमा उबर्रिउ, और इस पारे में 19 रुकू और 155 आयात हैं। उसके बाद पारा नंबर 14 रुबामा, पारे का नाम है रुबामा, और इस पारे में 22 रुकू और 226 आयात हैं। पारा नंबर 15 का नाम है सुब्हानल्लज़ी, सुब्हानल्लज़ी। इस पारे में 21 रुकू और 185 आयात हैं। पारा नंबर 16, इसका नाम है क़ाल अलम, क़ाल अलम। इस पारे में 17 रुकू और 269 आयात हैं। उसके बाद पारा नंबर 17, इस पारे का नाम है इक़्तरबा, इक़्तरबा, और इस पारे में 17 रुकू और 190 आयात मौजूद हैं। उसके बाद आज के सबक का आखिरी पारा, इस पारे का नाम है क़द अफ़लहा, पारा नंबर 18, इसका नाम है क़द अफ़लहा। इस पारे में 17 रुकू और 202 आयात हैं। तो ये तो था इन पारों का मुख्तसर तारुफ, जिसमें हमने आपको पारे का नाम, उसमें मौजूद रुकू और आयात की तादाद बताई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी मालूमात मौजूद हैं। आपके सामने एक जदवल और एक नक्शा मौजूद है, जिसमें पारे का नंबर, पारे का नाम, उसमें मौजूद सूरतों की तादाद और उन सूरतों के नाम मौजूद हैं। ये जदवल हम आपको लिंक में भी देंगे, और इस वीडियो की पीपीटी जहां पर मौजूद है, वहां से आपने ये जदवल लेना है, इसको डाउनलोड करना है और प्रिंट करके अपने पास रखना है, और इसमें मौजूद मालूमात को आपने याद करना है और एक दूसरे के साथ दोहराई करनी है, और इनको अच्छी तरह से याद करके आपने एक दूसरे को सुनाना है। असातिज़ा ये सरगर्मी करवा सकते हैं अगर वो मुनासिब समझते हैं, ताकि बच्चों को पारे सूरतों के नाम और उनकी तादाद अच्छी तरह मालूम हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर पारा नंबर 9 क़ाल मलउ, इसमें सूरतें 2 हैं, और कौन कौन सी हैं? सूरतुल आराफ और अनफाल। इसी तरह हर पारे का नाम, नंबर, उसमें मौजूद सूरतों की तादाद और उनके नाम इस पूरे जदवल में मौजूद हैं, जो कि असातिज़ा और बच्चे सब के लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें, पारा 10, 11, 12 और हर पारे के बारे में ये मालूमात इसमें मौजूद हैं। उसके बाद अगली चीज वो है इन सूरतों के मानी। जो जो सूरतें पारा नंबर 9 से 18 तक मौजूद हैं, उनके मानी हम देखते हैं कि उनके मानी क्या हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आज की सूरत है सूरह आराफ। इसका नाम सूरह आराफ है और जिसका माना है बुलंदियां। उसके बाद सूरह अनफाल, जिसका माना है अमवाले गनीमत। सूरत नंबर 9 सूरह तौबा, जिसका माना है माफी। उसके बाद सूरह यूनस, हूद और सूरह यूसुफ, ये तीनों पैगंबर के नाम हैं। यूनस, हूद और यूसुफ अलैहिमुस्सलाम, ये तीनों अंबिया के नाम हैं। उसके बाद है सूरह राद। राद का माना है बादल की गरज। इब्राहीम आपको मालूम है मारूफ नबी का नाम है। उसके बाद है सूरह हजर, जो कि एक मकाम और एक जगह का नाम है। सूरत नंबर 16 सूरह नहल, ये शहद की मक्खी को कहा जाता है। और उसके बाद सूरत नंबर 17 सूरह बनी इसराइल, जो कि 15वें पारे में है
बनी इसराइल का मतलब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। सूरत नंबर 18 कहफ, इसका माना है गार। सूरह मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम है, जिनके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया। सूरह ताहा, हरूफ तहजी के 2 हरूफ हैं, एक है ता और एक हा। सूरह अंबिया, अंबिया जमा है नबी की, यानी अल्लाह ताला के पैगंबर। सूरह हज, हज का माना है जियारत करना। और उसके बाद है सूरह मोमिनून, पारा नंबर 18 में सूरत नंबर 23 है, जिसका माना है ईमान वाले लोग। उसके बाद है सूरह नूर, नूर का माना है रोशनी। और आज की आखिरी सूरत हमारे सबक की वो है सूरह फुरकान, इसका माना है हक और बातिल में इम्तियाज करने वाली और फर्क करने वाली सूरत। तो ये तो था सूरतों के नाम और उनके मानी। इसी से मुतालिक एक घर का काम है कि आपने पारों के नाम गौर से पढ़ने हैं। जो आज आपको बताया गया, आपने पारों के नाम गौर से पढ़ने हैं और देखना है कि इनमें कौन सी सूरतें किसी के नाम पर हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इनमें बाज़ सूरतें किसी न किसी के नाम पर हैं, या तो किसी जगह के नाम पर हैं या किसी शख्सियत के नाम पर हैं। आपने वालिदैन की मदद से उनके नाम तहरीर करने हैं कि यह सूरत किस शख्सियत के या किस जगह के नाम पर है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला घर का काम, आपने हर रोज एक रुकू की तिलावत करनी है। हर रोज आपने कम से कम एक रुकू की तिलावत करनी है और एक जदवल बनाना है, एक नक्शा बनाकर उसमें आपने तहरीर करना है कि आज आपने कौन से पारे की कौन सी सूरत या कौन सी सूरत का कौन सा रुकू तिलावत किया। एक हफ्ते बाद आपने वो जदवल वालिदैन से दस्तखत करवाना है और उनसे तस्दीक करवाकर वो जदवल अपने असातिज़ा को दिखाना है, ताकि असातिज़ा को ये बात मालूम हो कि आप हर रोज किसी 1, 2 या 3 रुकू की तिलावत कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं सरगर्मी की जानिब, जो कि आज के सबक ही से मुताल्लिक है, सूरतों के ज़माने और तादाद। यानी सूरत जो हमने आज पढ़ी हैं वो किस ज़माने की है, मक्की है या मदनी है, और उनमें रुकू और आयात की तादाद क्या है, आपने इसका जदवल बनाना है। और वो कैसे बनाना है, आपके सामने हमने मिसाल के तौर पर एक सूरत और उसकी कुछ मालूमात का इंदिराज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पहली सूरत सूरह आराफ का नाम लिखा और उसके बाद लिखा कि ये मक्की सूरत है और इसमें रुकू 24 है और आयात कितनी है, 206। आपने इसी तरह उन तमाम सूरतों के नाम जो इन 10 पारों में मौजूद हैं उनके नाम यहां पर तहरीर करने हैं, उनका जमाना लिखना है और उनके रुकू और आयात की तादाद लिखनी है। ये आपकी है सरगर्मी, जो कि आप वालिदैन की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी किताब के सफ़े पर बिल्कुल इख्तिताम पर सरगर्मियां मौजूद हैं। असातिज़ा ये सरगर्मियां भी बच्चों से ज़रूर करवाएं, वो चाहे एक दिन में एक या हर हफ्ते में एक करवाएं, और इसके अलावा भी अगर वो चाहते हैं तो वो सरगर्मी करवा सकते हैं। उसके बाद है रहनुमाए असातिज़ा। असातिज़ा इनका मुताला ज़रूर किया करें हर सबक को पढ़ाने से पहले, ताकि उस पूरे सबक का खुलासा और उसको पढ़ाने का अंदाज उनके जहन में आ जाए। और प्यारे बच्चों, उसके बाद है रहनुमाए असातिज़ा। असातिज़ा इन पारों को 10 पारों को पूरे साल पर तकसीम करें और अंदाज़ा लगाएं कि हर महीने में या हर हफ्ते में कितने पारों की तिलावत कम से कम होनी चाहिए, और उसके मुताबिक बच्चों को घर के काम की सूरत में इन पारों के नाजरा तिलावत करने का काम दें, और वक्तन फवक्तन बच्चों से पूछते भी रहा करें और जमात में भी उनसे तिलावत करवाएं, ताकि वो तिलावत करने के आदी हो सकें और साल के इख्तिताम पर कम से कम उनके 10 पारों की तिलावत मुकम्मल हो जाए। सबक के इख्तिताम पर है एक अमली मंसूबा, देखते हैं कि इसमें कौन सा अमली मंसूबा आपने करना है। सूरह हूद में 7 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी अक़वाम के वाक़यात मज़कूर हैं। 7 अंबिया कराम वालिदैन के साथ मिलकर वो वाक़यात हर रोज़ पढ़ें, यानी 7 दिन में आपने एक दिन में एक वाक़या पढ़ना है, और अपनी डायरी में आपने लिखना है कि किस दिन आपने कौन सा वाक़या पढ़ा और किस कौम को किस गुनाह की वजह से अजाब में मुब्तला किया गया। तो ये अमली मंसूबा जो कि निहायत बेहतरीन है और आपके लिए मुफीद साबित होगा। आपने उन 7 अक़वाम का वाक़यात पढ़ने हैं वालिदैन की मदद से, या वालिदैन को कहें कि वो आपको किसी अच्छी
کتاب سے یا قصص الانبیاء سے وہ واقعات آپ کو سنائیں اور آپ ان سے یہ سیکھیں کہ کس قوم کو کس گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور آپ اس گناہ سے توبہ بھی کریں. یہ ہے عملی منصوبہ جو کہ انشاءاللہ 7 دنوں پر محیط ہوگا. تو چلتے ہیں اور اپنا سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں. آج ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آج ہم نے پارہ 9 تا 18 کا تعارف آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد ہم نے ہر پارے میں موجود صورتوں کی تعداد اور ان کے نام بتائے اور آخر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ان صورتوں کے معنی کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا. اس ویڈیو کی پی پی ٹی، اس کا لیسن پلان اور ورک شیٹ آپ نے ضرور ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس سے فائدہ لینا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.